محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تھا کہ اس ہاتھ کی انگلی میں بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاپوش مبارک کے ذریعہ اس بچھو کو مار ڈالا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور دونوں کو ایک برتن میں گھول دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو جو برتن میں تھی یعنی پانی اور نمک کو انگلی کے اس حصے پر ڈالتے جاتے تھے جہاں بچھو کاٹا تھا، اور انگلی کو ملتے جاتے تھے۔ نیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ ان دونوں روایتوں کو باہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 باتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو آسمانوں کی زینت بنایا، اور دوسرے شیاطین و جنات کو مارنے کے لیے، اور تیسرے علامات کے لیے کہ لوگ ان کے ذریعہ جنگل و دریا میں اپنا راستہ پا سکیں۔ لہٰذا جس شخص نے ان ستاروں میں ان 3 باتوں کے سوا اور کوئی غرض بیان کی تو اس نے خطا کی، اپنا حصہ ضائع کیا، اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ نہیں جانتا، یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہیں۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ امتحانات کے قبل سے ہی بہتر نتائج کے لیے ابھی سے طلبہ تمام مضامین پر فوکس کریں اور اساتذہ بہترین تدریس کی فراہمی کے لیے اقدامات کریں۔ ضلع کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی۔ کل بروز اتوار 29 جون کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا نظام آباد کا دورہ، ہلدی بورڈ مرکز کا افتتاح، کسانوں سے کریں گے خطاب، تمام تیاریاں مکمل۔ عوام پلاسٹک کور کا استعمال نہ کریں اور صاف صفائی پر خصوصی توجہ دیں۔ بھیمگل میں شعور بیداری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ابھی سے بہتر تعلیم اور تدریس کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور جو طلبہ مختلف مضامین میں پیچھے ان پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ضلع کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی نے عہدیداران کے ہمراہ محکمہ تعلیم کی کارکردگی کا لیا جائزہ اور دی ہدایت۔ جمعے کی شام کلکٹر نے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں عہدیداروں کے ہمراہ محکمہ تعلیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ کلکٹر نے تجویز پیش کی کہ 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کی سالانہ امتحانات میں بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے تعلیمی سال کے آغاز سے ہی ضلع کے تمام سرکاری اسکولز، کالجز، رہائشی اسکولز، کالجز اور گروکلز میں بہتر تدریس کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کلکٹر نے ضلع میں سرکاری اسکولوں، کالجوں، بی سی، ایس سی، ایس ٹی، اقلیتی رہائشی اسکولوں، گروکلز اور کے جی بی وی کے انتظامات اور گزشتہ سال حاصل کردہ نتائج کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ اگر امتحانات قریب آتے ہی منصوبہ بند طریقے سے طلبہ کو معیاری تعلیم دی جائے تو بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اشوک کو ہدایت دی کہ وہ منڈل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں اور کمپلیکس ایچ ایم کے ساتھ باقاعدگی سے جائزہ لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ رپورٹ کے مطابق تعلیم فراہم کی جائے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ایسے طلبہ کی نشاندہی پر خصوصی توجہ دی جائے جو ریاضی، انگریزی اور جنرل سائنس جیسے مضامین میں پیچھے۔
10वीं जमात पास करने वाले हर तालिब इल्म को कॉलेजों में दाखिला देने को यकीनी बनाने की निगरानी की जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि जिन लोगों ने 10वीं जमात मुकम्मल कर ली है लेकिन आला तालीम में शामिल नहीं हुए, उनकी निशानदेही की जाए, तलबा के हिसाब से मुकम्मल तफसीलात जमा की जाए और उनसे राब्ता करके कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए इक़दाम किए जाए। उन्होंने कहा कि माली हालात और दीगर वजूहात की बिना पर तलबा को आला तालीम से दूर ना रखा जाए और कहा कि तमाम स्कूलों में निसाबी कुतुब पहले ही मुकम्मल तौर पर तलबा में तकसीम कर दी गई। उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि 80% तक नोटबुक भी तकसीम कर दी गई और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए कि बकाया को भी ज़िले के लिए मख्तस किया जाए और कहा कि तालिब इल्म को सरकारी मेनू के मुताबिक मियारी ग़िज़ात से भरपूर खाना फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दाखिलों को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, DIEO रवि कुमार, DO अशोक, BC, SC, ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान, श्रवंती, रिहायशी तालीमी इदारों के इलाकाई कोऑर्डिनेटर और मुतल्लिका अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। कल बरोज़ इतवार 29 जून को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का निज़ामाबाद का दौरा, हल्दी बोर्ड मरकज़ का करेंगे इफ्तिताह और किसानों का बरसों का देरीना ख्वाब अब होगा मुकम्मल, किसानों से भी करेंगे खिताब। अमित शाह आमद की तमाम तैयारियां मुकम्मल, तैयारियों का पुलिस वफद व ओहदेदारान ने कमिश्नर ऑफ पुलिस के हमरा लिया जायजा। विन ने किसानों की देरीना ख्वाहिश को पूरा किया और हल्दी बोर्ड का क़याम किया और ज़िले के किसान के बेटे को चेयरमैन भी बनाया। अपोजिशन हल्दी बोर्ड मरकज़ के ऐलान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जहर उगल रही। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्दी बोर्ड के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर बीजेपी ज़िला पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि MP धर्मपुरी अरविंद ने हल्दी बोर्ड के क़याम से हल्दी किसानों की दहाइयों का ख्वाब पूरा किया। अपोजिशन पार्टियों ने बॉन्ड लिखने पर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ हल्दी बोर्ड का क़याम किया बल्कि इस ज़िले के किसान के बेटे को चेयरमैन भी बनाया। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि अपोजिशन जमातें जो हल्दी बोर्ड मरकज़ के ऐलान और इस ज़िले में एक किसान की बतौर चेयरमैन तकर्रुरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मुसलसल जहर उगल रही। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड का दफ्तर कायम होने की वजह से निज़ामाबाद ज़राई शोबे के लिए एक फोकल पॉइंट बन जाएगा। दफ्तर का ऐलान ना करने पर अपोजिशन पार्टियों ने हल्दी बोर्ड का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि इस माह की 29 तारीख को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। बादशाह दोपहर 1 बजे पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में किसानों का इज्तिमा और एक बहुत बड़ा जलसे-आम मुनाकिद किया जाएगा। इसलिए उन्होंने निज़ामाबाद ज़िले के तमाम अवाम से अपील की, खास तौर पर हर वो शख्स जो किसानों की भलाई चाहता है। మంత్రి అమిత్ షా గారి చేతుల మీదుగా ఇందూరు నగరంలో వినాయక్ నగర్ ప్రాంగణంలో పసుపు బోర్డు కార్యాలయం ప్రారంభం కాబోతా ఉంది. తర్వాత పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్ లో రైతు సమ్మేళనం, రైతు మహాసభ అందరూ కూడా
రైతు బాగుండాలి అని కోరుకునే వాళ్ళం. ఎందుకంటే రైతు బాగుంటే మనం బాగుంటాం, దేశం బాగుంటుంది. కనుక ఆ రైతు సమ్మేళనానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ సభకు మద్దతిస్తూ మరియు అరవింద్ ధర్మపురి గారు సాధించిన పసుపు బోర్డుకు కృతజ్ఞతలు, అదేవిధంగా మోడీ గారి, అమిత్ షా గారికి కూడా నిజామాబాద్ హిందూ జిల్లా తరఫు నుండి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవడానికి ఆ భారీ బహిరంగ సభ ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఘటం. ఇందూరు జిల్లాలో, ఇందూరు నగరంలో పసుపు బోర్డు కార్యాలయం అంటే దేశం నలుమూలల నుండి ఆ కార్యాలయానికి जमालपुर विट्ठल व्यास मेमोरियल सोसाइटी ने आनजहानी सहाफी विट्ठल व्यास की 5वीं बरसी पर खून की अतिया कैंप का किया इनेकाद। खून का अतिया करना जिंदगी देने के बराबर, नामवर डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद का बयान। जमालपुर विट्ठल व्यास मेमोरियल सोसाइटी ने आनजहानी सहाफी विट्ठल व्यास की 5वीं बरसी के मौके पर हफ्ते को निजामाबाद शहर के रेड क्रॉस में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया। नामवर डॉक्टर्स डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर धनपाल और डॉक्टर संदीप राव इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे और खून के अतिये की अहमियत को बयान किया। खून का अतिये के बारे में गलत फहमियों को दूर करने के लिए सभी को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेहतमंद शख्स हर 3 माह में एक बार खून का अतिया दे सकता है। खून का अतिया करना जिंदगी देने के बराबर है। उन्होंने जमालपुर विट्ठल व्यास मेमोरियल सोसाइटी के मुंतजमीन को समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के साथ खून के अतिया कैंप के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर 19 अफराद ने खून का अतिया दिया। इस तकरीब में सोसाइटी के सदर डॉक्टर जमालपुर राजशेखर, R&B रिटायर्ड EE, रेड क्रॉस के चेयरमैन बी अंजनेलू, मेडिकल ऑफिसर वाइस चेयरमैन विजयानंद, निजामाबाद प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शेखर, TUWJ ITU नेशनल काउंसिल के रुकन गंगादास और दीगर भी मौजूद थे। ఉపకారం జరుగుతుంది, ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు, మనం సంపాదించిన దాంట్లో రూపాయి కానీ మనం చేసే పనిలో ఎదుటి వాళ్ళ ఆనందం చూడాలనే కోరిక తనకి బాగా ఉంటుండే. సో అలా సేవ చేయాలనే దృక్పథంతో నన్ను డాక్టర్ కూడా చేయడం జరిగింది తను. సో నేను ఆ డాక్టర్గా కాకుండా ఇలా 10 మందికి ఉపయోగపడే సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేయాలన్నది నా కర్తవ్యం లాగా నేను ఎంచుకున్నాను. నేను ఇంతకుముందు కూడా దాదాపు 2008 నుంచి కూడా ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ మా సూర్యతేజ సొసైటీ నుంచి నిర్వహించినప్పుడు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు నా వెన్నుతట్టి ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి, 10 మందికి ఉపయోగపడాలి మన కార్యక్రమాలు అనేది. సో తన తర్వాత కూడా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు నేను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. నాకు ప్రతి ఒక్కరి సహకారం, మా నాన్నగారి ఫ్రెండ్స్, ప్రెస్ క్లబ్కి సంబంధించిన చాలామంది కానీ, డాక్టర్ వినయ్ ధన్పాల్ గారు కానీ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ, వీళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించడము, తర్వాత రక్తం ఇవ్వడం అనేది చాలామందికి అపోహలుగా ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే రక్తం ఇస్తే ఏదో అయిపోతుంది, ఇంకేదో ఉంటుంది అనేది. సో మన రక్తదానం ఇవ్వడం వల్ల 10 మందికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రథమంగా మేము ఎంచుకుంటున్నాము. प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल ना करने और वबाई अमराज से मोहतात रहने के लिए भीमगल में म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने अवाम में लाई शौर बेदारी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए 100 रोज़ा एक्शन प्लान के एक हिस्से के तौर पर हफ्ते को आरमोर टाउन के वार्ड्स 25 और 36 में सफाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। म्यूनिसिपल के अमले ने कॉलोनी के मकीनों के घर घर जाकर प्लास्टिक पर पाबंदी और वबाई अमराज से एहतियात बरतने के लिए बेदारी लाई। उन्होंने आवारा कुत्तों से मुतल्लिक़ एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। कमिश्नर ने सफाई के काम का मुआयना किया। इस प्रोग्राम में माहौलियाती इंजीनियर, वार्ड ऑफिसर्स जयलक्ष्मी, सिंधुजा, सैनिटरी जवान नरसैया, गोपी और मेपमा RP और दीगर भी मौजूद। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के तहत पुल की तामीर का काम तातुल का शिकार। 3 मंडलों की अवाम ने ये मामला हुक्काम के इल्म में लाने के बावजूद ओहदेदारान कोई जवाब नहीं दे रहे। हुक्काम इस पुल का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करें, मुकामी अवाम का मुतालबा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के तहत रुद्रपुर मंडल के रायपुर गांव के मज़फ़ात से बोधन तक एक पुल की तामीर का काम साल 2023 में उस वक्त की BRS हुकूमत के तहत
301.50 लाख रुपए की लागत से शुरू किया गया था। ताहम इस पुल की तामीर का काम दरमियान में ही रोक दिया गया। आवाम की शिकायत है कि 2 साल गुजर चुके और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के दौर में भी इस पुल की तामीर का काम मुकम्मल नहीं हो सका। किसानों और गांव वालों का इल्ज़ाम है कि काम दरमियान में ही रोक दिया गया था। उन्होंने सवाल किया कि इस पुल के तामीराती काम को दरमियान में रोकने का क्या फ़ायदा। गांव वालों और किसानों की शिकायत है कि रायपुर गांव से पुल तक बीटी रोड की तामीर का काम भी मुकम्मल हो चुका और इस पुल की तामीर का काम आधा रोक दिया गया। लेकिन ये मामला बोधन सब कलेक्टर के इल्म में लाने के बाद भी सब कलेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर इस पुल का तामीराती काम मुकम्मल हो जाता है तो पोतंगल मंडल, कोडगीर मंडल और रुद्रुर मंडल के गांव वालों और किसानों के पास बोधन जाने के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर का फासला रह जाएगा और वो इस रास्ते पर आसानी से सफ़र कर सकेंगे। कम से कम अब किसानों और देहातियों का मुतालबा है कि हुक्काम और इंतज़ामिया फौरी जवाब दे और इस पुल की तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करे। పనులు ఎత్తివేయడం జరిగింది। అది ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమా మరి కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యమా మాకు అర్థం కావడం లేదు। ఎవరిని అడగాలో కూడా తెలియడం లేదు। సబ్ కలెక్టర్ గారికి విన్నవించడం జరిగింది। అతను ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పందన లేదు అతని మా పట్ల। ఈ మొత్తము 90% వర్క్ కంప్లీట్ అయింది। ఒక 10% చేసేస్తే మా రాయకూరు గ్రామానికి కానీ కోటగిరి మండల్కు కానీ పోతంగల్ మండలంకు కానీ బీర్పూర్ మండల్ వాళ్ళు కూడా బోధన వెళ్ళాలంటే ఈ రోడ్డు గుండానే వెళ్తున్నారు। రాయకూరు నుంచి కనీసం 5 కిలోమీటర్లకే చేరుకుంటాము। వేరే చుట్టుపక్కల నుంచి రుద్రుడు నుంచి కానీ పెంటగుర్దు నుంచి కానీ పోతే 15 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది। ఈ బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ అయితే మాకు 5 కిలోమీటర్లనే బోధన చేరుకుంటాము। ఈ సమస్యను ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ వర్క్ని పూర్తిగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాము। इस माह की 29 तारीख को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। अवाम और किसान बड़ी तादाद में इस जलसे में शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। कायदीन ने की अपील। आरमूर कस्बे की रैतू सेवा केंद्र में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हल्दी किसान एसोसिएशन के रियासती सदर के नरसिम नायडू और बीजेपी किसान मोर्चा निजामाबाद जिला सदर तिरुपति रेड्डी ने कहा कि हल्दी बोर्ड का ख्वाब जो तेलंगाना हल्दी किसान एसोसिएशन ने 2 दहाइयों से पूरा ना किया था और एमपी धर्मपुरी अरविंद की कोशिशों से उसे पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि हल्दी के किसानों के लिए तारीखी दिन मनाने का वक्त आ गया जब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए निजामाबाद में दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस माह की 29 तारीख बरोज़ इतवार निजामाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में मुनाकिद होने वाला हल्दी के किसानों का इजलास शायाना शान तरीके से मनाया जाए। उन्होंने कहा कि आरमूर सब डिवीज़न में हल्दी वाले 250 किसान अंजुमनों के तमाम अराकीन इस जलसे में शिरकत करें और तेलंगाना हल्दी किसानों की एसोसिएशन ने पहले ही तमाम किसान अंजुमनों को मद्दू करते हुए खतूत भेजे हैं। इस मीटिंग में बीजेपी सीनियर लीडर दिगर कायदीन मौजूद थे। తెప్పించి నిజామాబాద్కు ఈరోజు పసుపు బోర్డు తేవడం జరిగింది। అటు మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, మిగతా రాష్ట్రాలు అడిగినప్పటికీ కూడా మరి నిజామాబాద్ జిల్లా రైతుల త్యాగ ఫలితము పసుపు బోర్డు కాబట్టి ఈరోజు 20 రాష్ట్రాలలో పసుపు పండిస్తున్నారు। ఇక్కడి నుంచి మేఘాలయ దాకా మరి రాజస్థాన్ కావచ్చు, కేరళ కావచ్చు, ఎవరికి పసుపు మరి బోర్డుతో పనున్నా కూడా నిజామాబాద్ రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఏర్పడ్డదంటే మరి నిజంగా కూడా జిల్లా ప్రజలు, జిల్లా రైతుల మరి అదృష్టంగా భావిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం కోసము అమిత్ షా గారు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి ఈ నెల 29వ తేదీన నిజామాబాద్కు వస్తున్నారు। మధ్యాహ్నం 12:30 టైంలో మరి బహిరంగ సభ కూడా ఉంది। हुकूमत फौरी तौर पर फीस रिएम्बर्समेंट के बकाया जात की अदायगी करे और तलबा के मसाइल को हल करे। AISF असिस्टेंट सेक्रेटरी रघुराम ने किया मुतालबा और कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान वज़ीर तालीम की अदम मौजूदगी इंतहाई अफसोसनाक है। AISF के कायदीन ने बांसवाड़ा मंडल मुस्तकर में R&B गेस्ट हाउस में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। मीटिंग से खिताब करते हुए AISF के असिस्टेंट सेक्रेटरी रघुराम ने कहा कि
हुकूमत तलबा के मसाइल को हल करने में नाकाम रही। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो रियासत में फ़ीस रिएम्बर्समेंट के बकाया जात को फौरी अदा करे और कहा कि कांग्रेस हुकूमत में वज़ीर तालीम की अदम मौजूदगी बहुत तकलीफ दा है। रघुराम ने मुतालबा किया कि अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार तलबा के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दे और तलबा के मसाइल को हल करे। ఇవాళ విద్యాశాఖ మంత్రి ఉంటే ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి దానికి సంబంధించి విద్యారంగాన్ని రక్షణ చేయడంలో ముందుండి పనిచేస్తాననేది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాంతోపాటు ఏదైతే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ దాదాపు 7,000 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెండింగ్లో ఉండడం వల్ల ఇలా అనేక మంది విద్యార్థులు ఇలా పై చదువులకు వెళ్ళాలంటే సర్టిఫికెట్ల గురించి ఇలా ప్రైవేట్ డిగ్రీ జూనియర్ కాలేజీలో ఇలా పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థుల యొక్క ఫీజులు పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఇవాళ దృష్టికి ఇవాళ ఉన్నటువంటి కానీ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో ఇవాళ విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इम्तिहानात के क़ब्ल से ही बेहतर नताइज के लिए अभी से तलबा तमाम मज़ामीन पर फोकस करें और असातिज़ा बेहतरीन तदरीस की फ़राहमी के लिए इक़दामात करें। ज़िला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी। कल बरोज़ इतवार 29 जून को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का निज़ामाबाद का दौरा, हल्दी बोर्ड मरकज़ का इफ्तिताह, किसानों से करेंगे खिताब, तमाम तैयारियां मुकम्मल। अवाम प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल ना करें और साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें। भीमगल में शौर बेदारी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।